السلام علیکم، میں ہوں راشدہ منیر. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک بولتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اصل کامیابی ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا ہے. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 4.96 روپے فی یونٹ بڑھا دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پایا ہے تو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی اور یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہی ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. تو بجلی کی نئی قیمتیں 30 روپے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کیا اور پیٹرول کی قیمت 9 روپے کم کر دی گئی ہے. ایک طرف تو پیٹرول کم ہوا اور دوسری طرف بجلی کا بم لوگوں پر گرا دیا گیا. میں اس وقت موجود ہوں F7 مرکز میں کیمرہ مین اسرار کے ساتھ. آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد ثاقب. اچھا، جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو اس سے آپ لوگ بھی افیکٹ ہوتے ہیں؟ الحمدللہ پورا پاکستان افیکٹ ہوتا ہے. تو حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، 4 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی پیٹرول میں 9 روپے کمی کا اعلان کیا ہے، کم کر دیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ اقدامات اچھے ہوتے ہیں، کچھ جو نا ساتھ ساتھ چھوٹے طبقے کو مار دیتے ہیں. وہ ایسا ہے، اگر آپ 50 پہ پٹرول بڑھا کے 9 پہ سستا کرو تو کیا فائدہ. اور بل ماشاءاللہ آ جایا پچھلے سال سے 3 گنا زیادہ ہے. تو جو پیٹرول پر سبسڈی دیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میڈم فائدہ ہوتا ہے جب روٹین وائز سستا ہو. اگر آپ نے 9 روپے سستا کیا ہے تو اگلے سال اگلے ماہ آپ 30 روپے مہنگا کر دو گے تو کیا فائدہ اس 9 روپے سستے کا. اور جو بجلی کے یونٹ بڑھائے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میڈم وہ بجلی اس طرح ہے، یہ زیادہ تر افیکٹ ہمیں بھی ہے، غریب عوام کو زیادہ ہے. جو روٹی کماتی ہے، دن کا دہاڑی کا 1000 روپے کماتی ہے، وہ کہاں سے بجلی کا بل دے گی. تو آپ نے کہا کہ پچھلی دفعہ سے آپ کا بل 3 گنا زیادہ آیا ہے، تو آپ نے کیا بجلی کو زیادہ استعمال کیا تھا یا کیا ہے؟ سیم یونٹ ہے، تقریباً ہم نے یہ استعمال کیا ہے 600 سے 700 یونٹ. پچھلے سال تھا 22,000، اب ہمیں آیا 46,000. کیونکہ آپ کا جو ہے وہ گولڈ کی شاپ ہے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، سیل پرچیز ہوتا رہتا ہے. تو جب بجلی اب مہنگی ہوئی ہے اس سے آپ کو کیا افیکٹ پڑے گا؟ بجلی افیکٹ میڈم اب ہم کیا کہیں، اللہ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے، ہمارا بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا بھی لکھا ہوا ہے، جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی لکھا ہوا ہے. اس طرح نظام چل رہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد عامر. اچھا محمد عامر، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سیکورٹی کا کام کرتا ہوں. اچھا، سیکیورٹی گارڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا 4 روپے 96 فی یونٹ اور اس کے ساتھ ہی پیٹرول 9 روپے کم کر دیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے کیا آپ کو، ہمیں عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ادھر تو پیٹرول میں سستا ہو گیا، ادھر سے بجلی مہنگا ہو گیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہاں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے کہ اس طرح نہ کرو. ہم غریب لوگ ہیں، سیکورٹی کا کام کرتے ہیں، نہ ہمارا تنخواہ کچھ نہیں ہے، نہ اتنا مہنگائی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اور آپ کو خود ہی اندازہ ہے نا کتنا مہنگائی ہے. 16,000-17,000 تنخواہ ہے ہمارا، اس میں کوئی بچت ہوگی نا؟ خود ہی اندازہ لگاؤ. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو یہ انہوں نے ہمارے عوام کے لیے کیا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ ویسے باتیں کرتے ہیں، میڈیا پہ شو کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے اور آگے. بس صرف ہمارا اور آپ کے ساتھ شو کرتے ہیں کہ میں ڈیلی فائر سے میں نے بچایا ہے. وہ کسی نے نہیں بچایا ابھی تک. وہ کوئی وزیر اعظم آتا ہے کہ خزانہ خالی ہے، وہ بھی ہے، یہ مسئلہ ہے. کوئی وزیر اعظم بھی آیا ہے نا، یہ بات ہے نا ہمارے. تو وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی حکومت کا قصور تھا؟ نہیں، پرانی حکومت کا کوئی قصور نہیں تھا. اس نے صرف 3 سال کی حکومت کی. وہ تو پی ٹی آئی کا حکومت ہے نا، وہ بڑا فٹ حکومت تھا. اس نے 3 سال حکومت کی. 3 سال کے اوپر کم از کم 40 سال 50 سال کی اس نے کیا کیا ہمارے ملک کے ساتھ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کو کوئی قصور نہیں ہے، تو پچھلی حکومت میں مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی اب ہوئی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، اس ٹائم مہنگائی نہیں تھا. اس ٹائم 150 روپے کا لیٹر تھا. ابھی دیکھو نا 285 روپے لیٹر، 250 روپے لیٹر ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے نا. اس ٹائم نا آٹا کی قیمت ہے نا 1500 کا تھا، 1000 روپے کا تھا. ابھی دیکھو 2700 کا، 2800 کا. ہمارا غریب کا کیا حال ہوگا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ یاسر. اچھا یاسر، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں خود ٹیکسی ڈرائیور ہوں. ٹھیک ہے، آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں. تو حکومت نے 9 روپے کمی کی ہے، پیٹرول سستا کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
बस इस बारे में क्या क्या कहना चाहिए, पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए, जो रिलीफ आवाम को रिलीफ और देना चाहिए। एक तरफ से पेट्रोल महंगा होना चाहता है, वो सस्ता ना होने की वजह से और महंगा होना चाहता है। ये जितना भी सस्ता करेंगे और पेट्रोल महंगा होता है। ये भी एक तरफ से पेट्रोल सस्ता करते हैं तो दूसरी तरफ से बिजली महंगी करते हैं, तो वहाँ से वो उस तरफ इस तरफ से ना निकालें तो दूसरी तरफ से वो निकाल लेते हैं पेट्रोल। बिजली हमें और बिजली भी सस्ती होनी चाहिए, लिहाजा हमें रिलीफ लिया जाए और कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिदुल्ला। अच्छा जाहिदुल्ला, क्या करते हो? होटल पे काम करता हूँ। अच्छा, होटल पे काम करते हो। तो खबरें वगैरह सुनते हो? जी नहीं, खबरें वगैरह नहीं सुनता हूँ। अच्छा, पता है आजकल जो हो रहा है मुल्क में? हाँ, क्यों पता नहीं है। पता है। अच्छा, हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये सस्ता किया और बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, इस बारे में कुछ कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आवाम बहुत गरीब है, लोग गरीब है, कि सस्ताई होनी चाहिए, महंगाई बढ़ने होने नहीं दी। जब सस्ते हो जाएंगे, माल सस्ते हो जाएंगे, इसी तरह तो आवाम ऊपर हो जाएंगे ना, थोड़ा आहिस्ता ऊपर उठते, इसी तरह मुल्क हालात भी सही हो जाते हैं। तो अगर महंगाई कम कर दें, चीज़ें सस्ती कर दें, तो फिर मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाता है। आपका नाम? अमार। अच्छा अमार, क्या करते हो? मैं इधर जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो, ठीक है। तो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जी आपके सामने ही है, देखें हर चीज़ महंगी हो रही है, तो गवर्नमेंट से यही अपील है हमारी कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दें, यानी पेट्रोल बिजली को थोड़ा सस्ता करना चाहिए ताकि इससे आवाम को परेशानी ना हो। इस मंथ भी बिजली के बिल आए हैं, आपके सामने ही हैं, तो यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमें थोड़ा रिलीफ दें, चीज़ों में कोई कमी करें। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले महंगाई नहीं थी, अब महंगाई है? महंगाई पहले भी थी, लेकिन पहले ये था जितनी सैलरी थी उसमें बंदे का गुजारा हो जाता था, लेकिन देखें अभी तो ज़रूरत से भी ज़्यादा क्या कर सकता है बंदा, इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। आपके सामने ही है, आपको भी पता होगा किस कदर कीमतें ज़्यादा हुई हैं चीज़ों की, तो जो हमसे भी लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं, मज़दूर समझ लें, उनका गुजारा कैसे हो तो रहा है। आपसे यही पूछ रही हूँ ना, इन जो बढ़ती हुई कीमतों के बाद आपका गुजारा कैसे होता है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? गुजारा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, अल्लाह ही है, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं, हुकूमत तो कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो हुकूमत ने जो पेट्रोल सस्ता किया है 9 रुपये, इस पर आप खुश नहीं हैं? 262 पे था आई थिंक, तो 9 रुपये सस्ता करने से कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। नवाज शरीफ के दौर में यही पेट्रोल 80 रुपये 90 रुपये लीटर था। तो अभी भी तो पीजीएम की हुकूमत है, उसमें नून लीग भी है, तो अभी वही है। यही है, उनसे भी अपील करते हैं हम कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दें, कोई कीमतों में कमी करें। बाकी आगे उन्होंने भी बेहतर ही सोचा हमारे लिए, उनको चाहिए कि थोड़ी कमी पेशी और कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। ठीक है, आप ये फ्रूट्स बेचते हैं? हाँ जी, फ्रूट बेचते हैं जी। अच्छा, तो इनसे अच्छा गुजारा हो जाता है आपका? इससे बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो जाता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये कमा के जाते हैं, जो नहीं कमाते वो 4-5 हज़ार कमा के भी कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं कमाया। कम से कम जब बुरा दिन होता है ना, बारिश पड़ती है, उस दिन 3 हज़ार कमा के जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है? मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, ये सिर्फ धोखेबाजी करते हैं कि महंगाई होगी, हम लूटेंगे, हम पूटेंगे, रातों को ये महंगे महंगे होटलों में खाना खाते हैं, मैं भी साथ, ये बात। तो हुकूमत ने जो 4 रुपये बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया है और बढ़ा दिया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी महंगी नहीं हुई? ये महंगाई 4 रुपये बढ़ी है ना, 4 की जगह 16 रुपये भी बढ़ जाती ना तो कोई मसला ही नहीं था। नहीं, ये 4 रुपये 96 पैसे। हाँ जी, 4 पे 96 पैसे बढ़ी है ना, इसकी जगह 16 रुपये अगर बढ़ती ना तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि 5-6 हज़ार कमाने वाला बंदे के लिए ये गाजर मूली है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लोगों पर ये कोई मसला नहीं है और ज़्यादा? इन लोगों पे जुल्म मोड़ होने चाहिए, हद हो गई है, हर बंदा झूठ बोलता है, हर बंदा बेईमानी करता है। ये बेईमानी करने वालों के साथ 16 रुपये बढ़ाने चाहिए ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो आपने कहा था कि कोई महंगाई नहीं है, लोग ड्रामा करते हैं, और अभी आपने कहा कि जुल्म और होना चाहिए, ये दो वर्ड्स क्या? मैं कह रहा हूँ कि महंगाई हो गई है ना, कोई मसले नहीं है इन लोगों के लिए।
महंगाई हो गई, कोई मसला नहीं, मैं 4-5 हज़ार रुपये रोज़ कमाता हूँ, हफ्ते में मैं 3 दिन आता हूँ, 4 दिन मैं काम पे नहीं आता, तो मेरे लिए महंगाई कहाँ है? अगर मैं ड्रामा करूँगा मेरे लिए महंगाई है, वो तो मेरे सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? परवेज़। अच्छा, आपका जिक्र काफ़ी यहाँ पूरी मार्केट वाले कर रहे थे, आप करते क्या हैं? मैं यही जामुन बेचता हूँ, चेरी बेचता हूँ, स्ट्रॉबेरी बेचता हूँ, फूल बेचता हूँ जी। तो हुकूमत ने बिजली 4 रुपये 96 पैसे महंगी की है, इसके साथ ही पेट्रोल भी कम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले ये जो कौम है, हम लोग, मैं किसी को बिलीव नहीं करूँगा, पहले हमें सीधा होना चाहिए। एक झूठ को ख़त्म करने के लिए अगर सब झूठ ख़त्म हो जाए ना, हुक्मरान भी ठीक आ जाएगा, मुल्क भी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। नहीं, हम तो झूठ बोलते हैं, इसका बिजली से क्या ताल्लुक है? बिजली की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस टाइम तक हम ठीक नहीं होंगे, ना तो सस्पाई होगी, ना तो कोई महंगाई पर कंट्रोल हो सकेगा, जब तक इस आवाम को और हुक्मरानों को चाहिए झूठ बोलना बंद कर दें। देखें, जितना झूठ बोला जाता है इतना जनाबली महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो रहे हैं। देखें, अभी मैं जामुन अभी टोकरा बंद करके आया हूँ, जैसे इस भाई ने कहा कि मैं हफ्ते में 3500 7,000 के करीब कमाता हूँ। अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह दे रहा है, दुनिया को निज़ाम कुदरत चला रहा है। गिला सिर्फ हमारा ये है कि खुदारा ला इलाहा को बुलंद करो, एक गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस गुर्बत की क्या वजह आप समझते हैं? ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, एक दूसरे का हक खाते हैं, गला काटते हैं, तो वो अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो वो जालिम भेज देते हैं। ठीक है, तो फिर जो बिजली की कीमत में 4 रुपये इजाफा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, इस पर आपको कोई गिला नहीं? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली की जो महंगाई की है ना, महंगाई पर कंट्रोल करें। बिजली की कीमतों पे, गैस की कीमतों पे, बिलखुसूस आटा जो है ना, मैं आपको अब एक छोटी सी बात बताऊँ, आंखों देखी। रमज़ान में नवाज शरीफ साहब ने आटा गरीबों को मुफ्त देने की तजवीज़ की। इसमें एक औरत आई, लाइन में मैं भी खड़ा था, उसने भी शनाख्ती कार्ड दिया, उसके 3 वीज़े दुबई के लगे हुए थे। कहाँ के? दुबई के। 12 कऊ के इलाके में वो औरत रहती है। अब मुझे ये बताएं कि गरीब का हक कौन खा रहा है? आटा भी सही नहीं था। नहीं, आटा ठीक था, ये झूठ मत बोलो, झूठ होता है। अब एक औरत जो है 3 वीज़े दुबई, सऊदिया और एक और तुर्की का। अब मुझे ये बताएं कि वो आटे की थैली की हकदार है? नहीं है या है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे, जो अभी जो महंगाई है मुल्क में? महंगाई के साथ साथ हम तो यही कहेंगे कि खुदारा इस महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपने देखा, जैसे इमरान खान आया, कोई और अल्लाह पाक उठा देगा, फिर इनकी हुकूमत फिर जो है डब्बे में जाएगी। इससे बेहतर है इन पर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। जी हाँ, तो अवाम शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल जब महंगा किया जाता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और ये सिर्फ 9 रुपये की कमी की गई है, जो कि बाद में फिर बढ़ा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है और इसी तरह हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और प्रोग्राम में।